Class 12th Commerce, subject Accountancy, chapter number 6, Cash Flow Statements. It is lecture number 8. And now see, in last slide, one question was left. That was question number 39. See, I am starting question number, it's not question, illustration number 39. Up to A part that was in previous slide, and because of some trouble, this part was not able, I was not able to add this part in that slide, in that previous PPT. इसके पहले वाले में क्वेश्चन नंबर 39 मैंने किया था, illustration 39 up to B part, and B part I am solving it now. Cash flows from investing activities, purchase of plant and machinery, 2 number. 2 number, it is the note or number of working note, 45,000. Purchase of plant and machinery is done. When purchase is done, there is outflow of cash, it is minus. Purchase of goodwill, how will you come to know that the purchase activity of goodwill has been done? On the comparison, when the amount of goodwill increases, it is very clear that the goodwill has been bought. Sale of land, income of cash, inflow of cash, it has been added. Net cash flow from investing activities, it is 85,000 rupees, 85,000. C number, cash flows from financing activities, proceeds from mortgage loan, it means mortgage loan has been taken, it is of rupees 1,70,000. Interest on mortgage loan, this interest is subtracted. Now you can see 24,300 amount has been subtracted, and you know this amount was added in CFO. CFO means cash flow from operating activities. This amount in that portion, in that activity, this amount is added and now it will be subtracted. एकदम याद रख लीजिए कि इंटरेस्ट है जो भी हमारा, उसको हमें प्लस करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, माइनस करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में. Net cash from financing activity, now you see the result is, it is in plus. So net, it is cash flow. You can write net cash flow from financing activities, it is 1,45,700. And now see, net increase in cash and cash equivalent. How did you get this result? A plus B plus C. In A column C, 1,67,700. It is the amount of subtraction, minus plus 85,000 plus 1,45,700. This gives you rupees 63,000. In this amount, opening cash and cash equivalents, they will be added. Opening money last year ka, beginning ka. Add cash and cash equivalents in the beginning of the period. It is 1,74,000. And then कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड वाला आपको मिल जाता है 2,37,000. देखिए फिर से सुनिए, आंसर हमें क्वेश्चन ही में गिवन होता है. दिस 2,37,000 it is given to you in illustration. You can easily see that the question, that the solution that you have done, that is correct if you get the same amount. Now see, is note number 1. How have you got net profit before taxes? Now see, this is the difference of last year's profit and this year's profit. Last year's profit 2017 3,56,000. This year's profit it is 2018 4,78,000. The profit amount is 1,22,000. This is the difference of previous year and current year. And then see, provision for taxation made during the current year. Provision for taxation made, it is always paid in NPBT. And paid is subtracted. If paid is given, paid को हमें माइनस कर देना है. जैसा कि अभी
इलस्ट्रेशन में भी किया था, प्रीवियस लेक्चर में किया था हमने सेम का सेम. Provision for taxation made during the current year, it has been added, and then you have got NPBT, it is 1,54,000. And listen, चीजों को याद करना और समझना आपको पड़ेगा. You will have to do the same thing. And now see, decrease in, and now see again it is the same thing. 45,000 का आपका डिक्रीज इन करंट एसेट्स है, 1,67,000 इसमें आपको मिला है. ऑपरेटिंग एक्टिविटी 85,000, द सेम वी हैव डन. सो आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज डन प्रीवियसली हमने यही किया था. एंड नाउ सी 1,54,000 ये आपको समझना पड़ेगा. देखिए नोट नंबर 1 बिफोर आई हैव एक्सप्लेन्ड. Now move on to second number, plant and machinery account on written down value method. By depreciation, this was given to you 15,000. उसके बाद में by balance CD closing balance है बेटा ये plant and machinery का 1,80,000. Opening balance it is written in the debit side 1,50,000, and the balancing figure balance is coming on the debit side. If balance comes on debit side, it is very clear that some purchase activity has been done. The same is done, you can see. To bank account balancing figure being purchased, the same के same words you have to write 45,000. On the preparation of plant and machinery account, either sale or purchase we get. If balancing figure is coming in debit side, it is purchase. If balancing figure is coming in credit side, it is sales. In this account, we have got the purchase of rupees 45,000. Land account, opening balance, closing balance, and then gain on sale. After that, you have got balancing figure on credit side. It is 1,40,000. It means land has been bought of rupees 1,40,000. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बहुत ध्यान से देखोगे बेटे. ओपनिंग बैलेंस आपको लिखना है क्रेडिट में, इट इज अ लायबिलिटी. ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आ गया, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में चला गया. आफ्टर दैट प्रोविजन मेड आपको क्वेश्चन में गिवन था. प्रोविजन मेड को हमने प्लस किया था एनपीबीटी में. पेड हमारा माइनस हो जाता है जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हैं, उसके लास्ट में हम उसको माइनस कर देते हैं. दिस 37,000 इट इज द बैलेंसिंग फिगर. एंड सी टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगी तो टू बैंक, अगर क्रेडिट में आती है तो बाय स्टेटमेंट. रादर देन दीज 4 आइटम्स यू विल गेट नथिंग इन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट. To bank account balancing figure, provision amount has been paid for taxation 37,000. This amount you have subtracted in CFO. 32,000 provision for taxation. This amount you have added in NPBT in the calculation of NPBT. And now see cash and cash equivalents. Current investments, कई बार मैंने आपको बता दिया है कि ये पैसा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रहेगा. मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया, करंट इन्वेस्टमेंट दे विल बी एडेड. नाउ सी 96,000 plus 78,000 for 2017, 1,74,000. Current investments, they are the part for cash and cash equivalents. Cash and bank 1,67,000. Current investment 70,000. देखिए रिजल्ट आपको मिला था 2,37,000 का, if you remember. Payment of interim dividend. If interim dividend is paid in adjustments, it will be added back to the profits while calculation of NPBT and will also be shown as the payment. देखिए ये बेटा एडजस्टमेंट है, हमेशा आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा इंटरम डिविडेंड. एनपीबीटी में प्लस होगा और फिर उसके बाद में जाकर के फाइनेंसिंग में जाकर के ये पैसा आपका माइनस हो जाएगा. द सेम हैज बीन रिटन. दोबारा से देख लीजिए. पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इट विल बी गिवन टू यू इन एडजस्टमेंट. जनरली आपको एडजस्टमेंट्स में ही गिवन रहता है. एनपीबीटी में प्लस करिए. To find out net profit before taxes, you will have to add the amount of interim dividend.
and after that this amount will be subtracted in कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वहां पर मैं आपको ये पैसा जा करके माइनस करना होगा। पेमेंट हुआ है, कैश का आउटफ्लो होगा जब इंटरम डिविडेंड को हम पे करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 40 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ सुप्रिया रोशनी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018 एंड 17। नाउ सी शेयर कैपिटल इज इंक्रीजिंग, इसको हमने इशू किया है, प्लस हो जाएगा फाइनेंसिंग में। रिजर्व एंड सरप्लस, पिछले साल का आपका लॉस है, इस साल का आपका प्रॉफिट है। And then long term borrowings 2 number, more loan has been taken, trade payables are increasing, liability हमारी बड़ी है, नुकसान प्लस होते हैं, प्लस हो जाएगा। ये भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्सेशन गिवन होगा। आफ्टर दैट एसेट्स गिवन है, नॉन करंट एसेट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या गिवन है। सेकंड फर्स्ट नंबर नॉन करंट एसेट्स and fixed assets, they also have been bought. See, in last year it is 1,70,000, this is 4 lakh, this year it is 4,52,000. non current investments increasing, खरीदा है हमने, 5,000 more has been bought. second number current assets, current investments, ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है बेटा। इन्वेंट्री, इंक्रीजिंग इन्वेंट्री, फायदा हुआ है, माइनस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स पहले से कम हुए हैं, लॉस प्लस हो जाएगा। कैश एंड बैंक, ये दिस यू विल टेक इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। दोबारा देख लीजिए, फिक्स्ड एसेट्स को हमने खरीदा है, पैसा प्लस माइनस होगा यहाँ से, इट इज आउटफ्लो ऑफ कैश। करंट इन्वेस्टमेंट्स आपने खरीदा है 5,000, माइनस आ जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट दे आर द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इन्वेंट्री आपकी बढ़ी है, माइनस हो जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके कम हुए हैं, नाउ यू कैन सी द कंपैरिजन, इट इज 1,76,000 देन 56,000, इट इज अमाउंट इज डिक्रीजिंग। व्हेन अमाउंट इज डिक्रीजिंग इन दैट क्या करेंगे बताइए। जिससे इन्वेंट्री हमारी बढ़ी, बढ़ने पर हमें फायदा हुआ, माइनस हो गया। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे कम हुए, ये पैसा आपका ऐड हो जाएगा। कैश एंड बैंक की लास्ट में जो सम अप करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 44,000 कंप्लीट अमाउंट एंड 1,84,000 कंप्लीट अमाउंट यू विल टेक। क्वेश्चन कंटिन्यूड है। रिजर्व एंड सरप्लस, इस साल में देखिए आपने जो भी सिक्योरिटी को इशू किया है, प्रीमियम पर किया है। लास्ट ईयर का एसपीआर इज नील, दिस ईयर का एसपीआर सिक्योरिटीज प्रीमियम, दिस इज ₹60,000। P&L लास्ट ईयर का लॉस, इस साल का प्रॉफिट है 56,000। LTV, see the variety of loan, it is debentures, 15% debentures, they have been more issued, 2 लाख से 2.5 लाख हुआ। In short term provision, listen what are the items, those are taken। Provision for doubtful debt, they are taken। Provision for repairs, they are taken। Fixed assets amount is given to you 2 lakh and 5 lakh। Accumulated depreciation, it is 30,000 and ₹48,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब देख लीजिए बेटा, एनपीबीटी में दिस 36,000 विल बी एडेड और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट प्रॉफिट, प्रॉफिट को आपने माइनस करना है सीएफओ में, उसके बाद ये प्रॉफिट कहीं पर भी नहीं, अकाउंट बनाएंगे उस अकाउंट में जाएगा बस। व्हेन यू विल प्रिपेयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, वहां पर प्रॉफिट लिखेंगे एंड दिस प्रॉफिट विल बी subtracted in CFO। CFO means cash flow from operating activities, tangible fixed assets, costing ₹20,000 जिसका कि 80, accumulated depreciation ₹8,000, it is sold for ₹17,000। additional debentures amounted to ₹50,000 were issued at par on August 1, 2017। interest on debentures को आप रेगुलरली पे कर रहे हैं। you have to prepare कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको बनाना है। And now see, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिबेंचर्स, ये आपका 35,000 है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, दिस इज 4,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स 5,000, ओवरऑल में 9,000। Operating profit before working capital changes, it is 1,80,000।
ऐड होगा, देखिए ऐड क्या क्या होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, प्लस होता है डीसीए आईसीएल, माइनस होता है आईसीए डीसीएल। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स 1,20,000 and trade payables they have been added. Overall amount is 3,60,000. Net cash flow from operating activities, it is 3,10,000. Now see, wait for 2 minutes. And now see, very much important thing I am telling you, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे उस चीज को आप। ये जो हमारा इलस्ट्रेशन का नंबर 40 है, this I am solving now. Some part I think that pick is not there, and again this is some technical issue, I don't know how have they arranged. See, NPBT में रहेगा आपका 1,22,000. See, when you open the book, page number is 6.66, and then add adjustment for depreciation आ गया 26,000 का. Provisions for depreciation, listen, if they increase पैसा plus होगा, if they decrease पैसा minus हो जाएगा 4,000. Provision for repairs, it is 2,000. उसके बाद में आपका ये आएगा interest paid on, means some 4 items they are not written, no problem, you can open your book, you can see. And then you will get cash flows from investing activities, this is rupees 3,10,000. सी 3,10,000 हमको मिल गया था। उसके बाद आ जाइए कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, परचेज ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स 3,20,000, सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, सेल होने पर पैसा आया प्लस 17,000, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स इट इज रुपीज 15,000, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000। अब सी द रिजल्ट इज कमिंग इन नेगेटिव, तो क्या होगा देखिए, net cash used in investing activities, it is 3,04,000. C number, cash flows from financing activities, proceeds from issue of share capital 75,000 has been added, securities premium received on issue of share capital plus होगा 60,000। आपने देखिए ऊपर में देखिए 60,000 75,000 के शेयर इशू किए हैं, that issue is along with premium, उसको हमने प्लस किया, देखिए 60,000। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उधार आपने और ले लिया पैसा प्लस, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, दिस अमाउंट इफ यू रिमेंबर, इस पैसे को हमने क्या किया था बेटा, सीएफओ में दिस मनी वाज एडेड इन फाइंडिंग एनपीबीटी, अब ये पैसा माइनस हो गया फाइनेंसिंग में। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 35,000, सीएफओ में हमारा प्लस था, यहाँ माइनस। नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इट इज 1,14,000, and net cash increase in cash and cash equivalent, it is A plus B plus C 1,20,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग वाला 94,000 आपने इसमें जोड़ दिया और आपको एंड वाला रिजल्ट मिल गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड यू हैव गॉट, इट इज 2,14,000। अब ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा बेटे इन बातों को। देखिए यहाँ पर आप ये समझिए कि लेस हमको करना रहता है प्रीवियस ईयर का बैलेंस, और वो लेस आपका माइनस में है, तो माइनस एंड माइनस प्लस हो गया 86,000। और आसान शब्दों में सुनिए, ये जो 56,000 है ये हमारा लॉस को कवर करने के बाद में है। लॉस था मेरा 30,000 का, इट मीन्स आई अर्नड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 86,000। उसमें से जो हमारा लॉस हुआ था उस लॉस को हमने राइट ऑफ किया, लॉस को राइट ऑफ करने के बाद में यू गॉट 56,000। आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो सुन लीजिए, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को हम माइनस करते हैं, देखिए लेस लिखा हुआ है, उसके बाद लेस के बाद पैसा ब्रैकेट में है, ये भी माइनस वो भी माइनस प्लस हो गया। इट इज योर विश हाउ टू अंडरस्टैंड, जैसे चाहे समझिए बात को। इंटरिम डिविडेंड पेड एनपीबीटी में प्लस होता है, प्लस हो गया 36,000, it is 1,22,000 overall. Negative balance of profit and loss amounting 30,000 appearing in the balance sheet on 31st March 2017 represents an amount of loss in the current year after covering this loss of 30,000। सेम का सेम मैंने आपको बताया बेटे कि लॉस को कवर करने के बाद में मेरे पास में, या लॉस को राइट ऑफ करने के बाद में मेरे को 56,000 का प्रॉफिट मिलता है 2018 में। इट इज वेरी क्लियर that the loss was written off, loss was covered
आफ्टर दैट यू गॉट द प्रॉफिट ऑफ 56,000, अदरवाइज में प्रॉफिट आपका 86,000 का था बेटा, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, सेल क्रेडिट में आ गया देखिए, एंड देन गेन वाज गिवन टू यू 5,000, और इस पर आपको एडी गिवन था, बिल्कुल देखिए। अब इसको हमने क्या किया, 17,000 प्लस 8,000 25,000 हो गया, उसको हमने 20,000 उसको हमने सेल किया था, 25,000 में से 20,000 माइनस हो गया, गेन आ जाता है आपका 5,000 का। और ये 5,000 का गेन आपका, देखिए मैं पढ़ रही हूँ एडजस्टमेंट 2 नंबर, यू कैन ओपन योर बुक। सेकेंड नंबर, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000। अब ये देखिए कॉस्ट था सिर्फ 20,000 का, जब हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन प्लस सेल, उसको माइनस कर देते हैं कॉस्ट में से। नाउ सी 25,000 में से आपने 20,000 को माइनस किया, 5,000 का गेन आ गया। आफ्टर दैट बैलेंसिंग फिगर यू आर गेटिंग इन डेबिट साइड, डेबिट साइड का जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज परचेज ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, इट इज ऑफ रुपीज 3,20,000। accumulated depreciation account, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। 8,000 आपको देखिए लास्ट एडी में गिवन था बेटा, एडी के नाम से गिवन था accumulated depreciation, you have got the depreciation, it will be the balancing figure, opening year, closing year, two fixed tangible asset, journal entry इसकी है accumulated depreciation account debit to fixed tangible asset, balancing figure is coming in the credit side, it will be known as by depreciation for current year, or rather than to write by depreciation account you can write by statement of P&L and in bracket you can write depreciation account। जब भी आप एडी अकाउंट बनाते हैं आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाता है, सीधी सी बात है बेटा। फोर्थ नंबर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल आपने किया था प्रॉफिट पर, सेल दिखा दिया, बाय बैंक सेल प्रोसीड 14,000, जितना प्रॉफिट था वो हमने डेबिट में लिखा, बाकी का आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर, और वो किस नाम से आएगा, दैट विल बी इन द नेम ऑफ परचेज टू बैंक अकाउंट 15,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड बैंक 44,000, 50,000 लास्ट ईयर का, जब इस साल का हमने देखा बेटे 1,84,000 प्लस रुपीज 30,000, 2,14,000। एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस करंट इन्वेस्टमेंट मैं आपको लगातार बता रही हूँ, करंट इन्वेस्टमेंट दे आर द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, द सेम वी हैव डन। लिसन टू योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 44 से 47 आप करेंगे। लिसन बेटे, whenever you have any doubt we can contact definitely। Thank you so much।